दोस्तों, आज का मेरा विषय बहुत निजी है पर हम सब स्त्रियों से जुड़ा हुआ है। ओ वुमनिया, स्त्री को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है और ये हकीकत है और ये हम सब इससे वाकिफ़ हैं। So my today's topic is why there is so much frustration among married women. I have been traveling and meeting lot of married women across the globe, and I found out mostly they are frustrated, dull and feel low. And through my interaction I have found out that it has become a life pattern आजकल. There are basically three reasons for this. First is financial instability, second is emotional imbalance, and third is physical discontentment. And all these three are like interrelated. If you take the financial aspect of the woman, like even if she's working, she feels financially insecure. Why is that so? It is because there is high standard of living and demands have been rising, and then there is high societal expectations. But my question remains the same. Why is there so much discontentment among the couples and married ladies? The reason behind इतनी भाग दौड़ की दुनिया में उनके पास एक दूसरे के लिए वक्त कहाँ है? Now my questions comes directly to all the ladies, and maybe if you can connect with the couples also, maybe couples, how many of them do really enjoy the sex life? I confronted a lady and she smiled and ignored. क्या ये सिर्फ मर्दों की ज़रूरत है? नहीं. How many women reach orgasm with each sex? Maybe 10% or maybe less than 10%. Where is the emotional connect and love? If you are physically satisfied, then you are emotionally balanced, and with that comes a sound, emotional, stable mind where a woman can secure her finance very properly. स्त्री का स्वभाव ही ऐसा है, उसको जरा सी भी खुशी मिल जाती है तो कई हद तक भी वो कुछ भी कर सकती है. So her happiness will grow with each connect through love. Here the initiative has to be taken by the ladies. One of the lady asked me, what do I do? And I was like astonished. There is so much to do to improve your physical attribute to feel emotionally balanced. I myself have been doing yoga for quite some time with Acharya Suresh ji. I told him about this subject and he said, yes, there are a lot of exercises and postures where you can channelize your energy in a proper way so that you will feel more happy and joyful in your life. I have invited Acharya Suresh ji to put some light on this subject. Welcome Acharya ji to my show and tell us something about yourself. You have been doing yoga for the past few years. नमस्कार, मेरा नाम आचार्य सुरेश है और योग के क्षेत्र में 20 साल से मैं कार्यरत हूँ. मैं सीख भी रहा हूँ और सिखा भी रहा हूँ. इस दौरान बहुत सारे अलग अलग लोगों से मिलने का मौका मिला और इसी जर्नी के दौरान प्रिया सोमानी जी हमें मिली कुछ 6 महीने पहले और बड़ा अच्छा लगा इनसे बातचीत करके. इनका देखने का नज़रिया, सोचने का नज़रिया बहुत अलग है और जो कि मुझे बड़ा अच्छा लगा. आज प्रिया जी ने अपने पॉडकास्ट में मुझे बुलाया है. बहुत बहुत धन्यवाद प्रिया जी का. Now Acharya ji,
Please explain how ladies can improve their physical relations and attain a maximum happiness in their life. आज हम बात करने जा रहे हैं किस प्रकार हम अपनी ऊर्जाओं को सही से संचालित करें, जिसमें हमारी फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल, सेक्सुअल एनर्जीज़ हैं। योग की दृष्टि के अनुसार ये शक्तियाँ जो हैं हमारे अंदर एक बहुत बड़ी ऊर्जा का स्रोत है, और जिस प्रकार ये जो एनर्जीज़ हैं, ऊर्जाएं हैं, इनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ज़बरदस्ती कंट्रोल करने के हम सोचें तो इसके परिणाम जो हैं वो बड़े विपरीत होते हैं। इसलिए जो है एक सही ट्रेनिंग और सही तरीके से एक समझबूझ के द्वारा इस कार्य को करा जाता है। इसके अंदर अलग अलग तरह के योग के आसन हैं, प्राणायाम हैं और कुछ ध्यान के ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिसके द्वारा हम अपनी शक्ति को सही से चैनलाइज कर सकते हैं और ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। उनमें अलग अलग तरह के आसन जैसे सेतुबंध आसन, सर्वांग आसन, सेतु बद्ध कोण आसन और विपरीत करनी जैसे आसन जो हैं बड़े महत्वपूर्ण आसन हैं। और साथ में जैसे चक्रों पे ध्यान, इस तरह के जो ध्यान की विधियां हैं उसके द्वारा हम इसको अच्छे से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। चलिए अब आइए अब इन आसनों को करके देखते हैं किस प्रकार ये आसन होते हैं और उसको अपने भीतर इस शक्ति को आत्मसात करते हैं। चलिए आइए अब शुरू करते हैं आसन और उसकी क्रियाएं। तो सबसे पहले जो है योगा के मैट पे आप पीठ के बल लेट जाएं, आराम से लेट जाएं, दोनों हथेलियां जो है ज़मीन पे रख दीजिए, दोनों टांगों को फोल्ड करेंगे और टांगों के बीच में 1 फीट का फासला लिया है। अपनी पूरी अवेयरनेस को अपने मूलाधार चक्र की ओर लेके आए और एक लंबा गहरा सांस लें और धीरे से अपने हिप को ऊपर की तरफ उठा दें। उठाएं और कोशिश अब ये करें कि आप अपने रेक्टम मसल को ऊपर की ओर खींचें और आपका पूरा ध्यान जो है वो गले की तरफ आ गया है और आपके जो थायराइड ग्लैंड है उस पे अपने ध्यान को बनाए रखें। पूरी अवेयरनेस और पूरी चेतना को बनाए रखना है। फिर धीरे से नीचे आ गए और यहाँ पे कुछ लंबे गहरे सांस लिए। लंबा गहरा सांस यहाँ पे लिया, छोड़ा और उस आसन को भीतर महसूस भी करा। उसके अनुभव को महसूस कर रहे हैं अपने भीतर। अब धीरे से अपनी दोनों टांगों को सामने की ओर खोल दीजिएगा। दोनों टांगों को आपस में मिलाएं, एक लंबा गहरा सांस लें। चलिए अब धीरे से दोनों टांगों को फोल्ड कर लिया, सेतुबंध आसन में आ गए। अपने दोनों हाथों को नीचे इंटरलॉक कर लिया और अपने कंधों को अंदर की तरफ सिकोड़ा और अपने हिप को जितना ऊपर उठा सकते हैं ऊपर उठाया और यहाँ बने रहे। लंबी गहरी सांस ली और छोड़ी। फिर धीरे से नीचे आ गए और यहाँ पे विश्राम करा। इसी तरह कमर को आराम दे रहे हैं, लंबा गहरा सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। सांस लेते वक्त, छोड़ते वक्त इस आसन को भीतर महसूस भी कर रहे हैं कि इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है अपने शरीर पे, अपने मन पे। चलिए अब धीरे से टांगे सामने की ओर। अब अगला जो आसन है वो है विपरीत करनी आसन, जिसमें दोनों टांगों को हम स्विंग करेंगे ऊपर 45 डिग्री के कोण पे। उठाइए टांगे ऊपर और ऊपर उठाएंगे और कमर को सपोर्ट कर लीजिए अपनी हथेलियों से। दोनों हथेलियों को इस प्रकार कमर पे ऐसे ले आइए और यहाँ पे बने रहें। लंबे गहरे सांस यहाँ पे लेने हैं, छोड़ने और महसूस करना है जैसे मानो आपके नाभि चक्र पे ऐसी कल्पना करें जैसे एक अमृत का कुंड है और उस अमृत को अपने सहस्त्रार्ध चक्र की ओर आप भेज रहे हैं। फिर धीरे धीरे करके नीचे आ जाएंगे और विश्राम की अवस्था। धीरे से विश्राम और टांगे सामने की ओर। यहाँ पे बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए शरीर और इस वाले आसन को भी अपने भीतर महसूस करें। देखिए सारे आसन जो है ना उसको जब तक आप अंदर से आत्मसात या उसकी एनर्जी को महसूस नहीं करेंगे तो उसका लाभ नहीं मिलेगा। अब तीसरा जो आसन है सुप्त बद्ध कोण आसन, जिसमें आप अपने दोनों तलवों को आपस में मिला लेंगे, घुटनों को बाहर की तरफ खोल देंगे और
दोनों हाथों से योनि मुद्रा बनाएंगे, जिसमें आपके हाथ के अंगूठे और आपकी जो इंडेक्स फिंगर के छोर हैं आपस में मिलेंगे। अब इस आसन को करते वक्त अपने पूरे ध्यान को अपने लोअर चक्रास की ओर, मतलब मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र और मणिपुर चक्र, तीनों चक्रों पे आप ध्यान को अच्छे से बनाएं। इस आसन को करते वक्त ये सोचें या ऐसी कल्पना करें, विजुलाइज करें कि मेरे जितनी भी असुरक्षाएं हैं, डर हैं और जो मोह है, अटैचमेंट है, वो दूर हो गई। और अपने हथेलियों से अपने आप को हील करें, ऊर्जा प्रदान करें अपने शरीर को इसके द्वारा। धीरे धीरे अपने दोनों टांगों को आपस में मिलाएं, टांग सामने की ओर और यहाँ पे विश्राम। लंबा गहरा सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं और भीतर महसूस कर रहे हैं। सुप्त बद्ध कोण आसन को भीतर महसूस कर रहे हैं। अब जो है थोड़ा सा कुंडलिनी शक्ति पे या मूलाधार की जागृति के लिए हम अब ये अभ्यास करने वाले हैं। सबसे पहले सिद्ध आसन में आएंगे। अपनी लेफ्ट वाली एड़ी को अपने पेरिनियम पॉइंट की तरफ ले आइए, फिर राइट वाला सामने की ओर आ जाएगा। दोनों हाथों को आप चिन्ह मुद्रा में ले आइए। कमर के बैलेंस को बना लेना है। देख लेना कि आपकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो सही से आपने उसको पकड़ा हुआ है। तो अगर थोड़ा दाएं बाएं करना हो शरीर को करिए, आगे पीछे करना हो करिए। फिर जहां आपको लगे कि अब सबसे अच्छा संतुलन बन गया है मेरी स्पाइन का, वहां पे रुक जाए। वहां रुकने के बाद एक लंबा गहरा सांस भीतर लेंगे, भरेंगे उसको भरपूर। अब मूल बंद लगा देंगे, रेक्टम मसल को टाइट खींचेंगे और चिन छाती की तरफ लेके चिन का भी लॉक लगा देंगे, जलंधर बंद लगा देंगे और फिर उद्यान बंद, पेट को भी अंदर खींच लेंगे। ये तीनों बंद आपने लगा दिए और होल्ड कर लिया है। रेक्टम मसल को भी अच्छे से पकड़ा हुआ है, अभी फिलहाल पकड़ा हुआ है, आपने होल्ड कर रखा है। अब धीरे से अपने रेक्टम मसल को छोड़िए बाहर, फिर धीरे से अपनी चिन को उठा लीजिए और पेट को ढीला छोड़ दीजिए। पहला चरण आप ये करिए इस प्रकार। फिर दूसरा चरण करते हैं। लंबा गहरा सांस लिया, फिर अपने मूल बंद को पकड़ा, फिर चिन को अपनी छाती की तरफ लेके आ गए और बंद लगा दिया। अब इस बारी संकुचन करना है, कॉन्ट्रैक्शन और डिकॉन्ट्रैक्शन करना है मूल बंद का। तो आप मूल बंद को खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं, खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं। मतलब रेक्टम मसल को खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं, खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं। करते रहेंगे जितनी आपकी शरीर में ताकत है। जब आपको लगे सफोकेशन हो रही है और अब मैं आगे नहीं कर पा रही, तो फिर धीरे से आसनों को रिलीज कर दीजिए, बंद को रिलीज कर दीजिए, ठोड़ी को खोलिए बाहर की ओर, आंखें बंद हैं और अब महसूस करें एक वाइब्रेशन अपने रेक्टम मसल में या अपने सर्विक्स एरिया की। देखें वहाँ पे एक वाइब्रेशन का अनुभव। इस वाली प्रक्रिया को आप 6 बारी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप इसमें अच्छे से अपनी ऊर्जा को ऊपर की ओर लेके आ पा रहे हैं और ये आपको एक अच्छा अनुभव आ रहा है, तो आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। चलिए अब यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। If a lady is emotionally satisfied, she can attain anything in the life. She can become a good painter, a master chef, or whatever she has dreamt in her life. So ladies, once your blocked energies has been released and channelized in a proper way, your outlook with the life will change. मेरा निवेदन है हर उन स्त्रियों से कि आप हर चीज़ पे अपने पति पर निर्भर ना करिए। आप भी सहयोग दें और अपना योगदान दें।